टाइम की बहुत रिस्पेक्ट की आपने एंड वेरी सॉरी कि हम हाफ एन आवर थोड़ा लेट शुरू कर रहे हैं बट द फन पार्ट इज़ आज का होस्ट मैं देवेन। मेरी आदत है चीज़ों को शॉर्ट एंड क्रिस्प रखने की, तो आई मेक श्योर कि आज जो हमारा ये मीट है ये बहुत ही स्पेशल और बहुत ही स्मूथली हम इसे एग्जीक्यूट करें। ग्रैंड आर्टिस्ट मीट में हमारे प्लान्स है। पुणे में इस चीज़ को रखने का एक मोटिव था, एक इंटेंशन था कि जो भी आर्टिस्ट है उन सभी को एक बार एक साथ लाया जाए एक जगह पे एंड सभी से कनेक्ट किया जाए। आगे बढ़ने से पहले हम आप सभी से एक छोटा सा इंट्रोडक्शन चाहते हैं। वी वुड लाइक टू हैव अ स्मॉल इंट्रोडक्शन बाय एवरीवन स्टार्टिंग फ्रॉम हियर मिस्टर दिलीप सर। So you can give us your name, you can share us about what kind of art you follow and few more things if you like to speak. You will have around 1 minute. Sir, अगर आप बैठ के if you are comfortable sitting and speaking, feel free to do so. Hello, my name is Dilip Puranik. My age is 68 years and I have started my art journey after my retirement from Bank of India. I retired in 2016. After that, I started to learn and practice traditional Indian art. I got National Award Gurus for Madhubani and lot of other arts, and mainly I am focusing on Madhubani plus other traditional folk art. I have done many exhibitions, got many awards, but still daily I am doing 3 hours work without fail. Thank you. Hello everyone, I'm Sharanya. I started pursuing my art journey from 2020 and I mostly work on abstract art and pen art as of now, and I'm still learning and I'm hoping that I'll take a lot of lesson from here today in this event. Thank you for having me here. I'm Reena Surana and I'm a contemporary and traditional artist, and I've been in this field from many years, but I can say last 10 to 15 years I'm regular in art field, and I also conduct art classes and I have participated in many art shows and exhibitions and hopefully will continue doing so, and so glad to meet all of you over here. Thank you. Hello everyone, I'm Sonali Gangane. I'm a former IT professional turned into an artist. I'm into this field since 2012, but actively participating in exhibitions online and offline from past 2 to 3 years. I also like to dabble in folk art, but mostly on fabric. That's it, and it is pleasure meeting you, and thank you ma'am for the opportunity. मैं आरती किशोर कोरडे, रहने वाली मैं चंद्रपुर की हूँ, लेकिन अभी इधर शिफ्ट हुई। अभी संतोष पांचाल जी का जो जाने था ना एग्जीबिशन, उसमें पहली बार पार्टिसिपेट किया। अभी राजा रवि वर्मा में भी 24 एलिगेंस में उसमें भी पार्टिसिपेट किया, और अभी मैं सीख भी रही हूँ और एग्जीबिशन भी कर रही हूँ। थैंक यू। नमस्कार, मैं मनीषा जोशी पुणे से ही हूँ, पेठेतली मुलगी, और त्यामुळे सॉरी इस वजह से थोड़ा आर्ट से दिल से नाता जुड़ा हुआ है बचपन से। मैं एक हॉबी आर्टिस्ट हूँ, इंडियन फोक आर्ट में काम करना पसंद करती हूँ मैं ज़्यादा तो, और एक कॉफ़ी पेंटिंग में करती हूँ। वो अभी स्टूडेंट हूँ मैं, अभी तो सीख रही हूँ, उसमें कुछ डेवलप करना है मुझे बस। थैंक यू। Hello everybody, my name is Satish Vartak. I am from Chinchwad and I am practicing art from last 20 years in realistic form and semi-realistic and portrait mostly. And I work in almost all media and conduct workshops and 3 to 4 days sessions also, online, offline, both. Thank you. Hello everyone, good afternoon. My name is Shibuji Nathan. So just like another software consultant, I would say like last 14-15 years I'm into art, basically into doodle art therapy basically.
So that is what I try to promote. And second, I just completed my GD art. So it's trying to learn some academic way of art. But still I would love to go back to the normal art which come from the heart. Thank you. Hello everyone, my name is Dimple Thada, and I don't know from where to start. Okay, so I recently started making arts, and I mostly do contemporary arts, and I'm here to learn from you all. That's it. Thank you. I want to skip as I am not an artist. myself किन्नरी दीक्षित। मैं बहुत सारे मीडियम में आर्ट करती हूँ। म्यूरल रहता है बेसिक MDF के ऊपर, मंडला वो मेरा बेसिक मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है वो करना, एंड एक्रेलिक आर्ट रहता है, एंड स्केचेस वगैरह भी रहता है। ओके, थैंक यू। नमस्ते सबको। एक्चुअली आई एम रनिंग 68 एंड मुझे ऐसे मैंने कौन से भी एग्ज़ाम नहीं दी है और नहीं मुझे शौक़ था पेंटिंग का, और बचपन से एक घटना ऐसी दुर्घटना हो गई मेरे साथ। दो तीन बच्चे मैंने लॉस किए डॉक्टर की गलती की वजह से। उस वक्त एक पेंटिंग मैंने देखा ऐसे, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, वो बच्चा मेरे बच्चों जैसा दिखा और मैंने वो स्टार्ट किया। सेम ट्रू कॉपी मैंने निकाली। उस दिन से मुझे बहुत शौक हुआ, तो मैं ऐसे बाहर से कैलेंडर लेकर आती थी और पेंटिंग करती थी अपना ये करने के लिए, दुख हुआ तो मन शांत करने के लिए। ऐसे करते करते एक दो जो ये रहते मंडल रहते, तो वो लोगों ने मुझे बोला कि आप शिवाजी महाराज की, छत्रपति महाराज की आपको हम बता देंगे। 4x3 की मैंने हाँ बोल दिया, कॉन्फिडेंस नहीं था लेकिन हाँ बोल दिया। ऐसे करते करते वो इतना सुंदर आया पेंटिंग, उसके उधर 2-3 मुझे ऑर्डर्स मिला। उसके बाद ऐसा चलते रहा थोड़ा मोटा कपड़े पे। केंद्रीय विद्यालय में मुझे जॉब मिल गया, 3 साल वहाँ जॉब किया मैंने। उसके बाद अभी लास्ट 2 साल से मैं ऑनलाइन ऑफलाइन कर रही हूँ। मुझे बहुत सारे प्राइज़ मिले। लास्ट इंडिपेंडेंस में मुझे इंटरनेशनल लेवल पे फर्स्ट प्राइज़ मिला। अभी 2 प्राइज़ मुझे फिर मिले। बहुत अच्छा लगा आप सबको मिलके यहाँ के, मुझे और अच्छा आगे मार्ग मिलेगा। Yes, Kuresh sir. We also. Yeah. Okay. Hi, my name is Kuresh Basrai. I am a professional artist. I basically do realistic artwork in oil on canvas. It's basically I do landscapes, horses, and still life. And I've won quite a few awards, national and international. Thank you. ओके, सो मेरा नाम डॉक्टर सोनल मंत्री है, एंड आप लोग सब मुझे सोनल बी सक्सेना के नाम से जानते हो इन द आर्टिस्ट वर्ल्ड। सो बेसिकली मेरा फोकस इंडियन फोक आर्ट्स पे है। मैं मोर देन 20 फोक आर्ट्स जानती हूँ, और मैंने सब मास्टर आर्टिस्ट से सीखा है जो नेशनल अवार्डीज़ है, ऑथेंटिक आर्ट है। और रिसेंटली मैं जो है वो कंटेम्प्रेरी पेन एंड इंक आर्ट भी करती हूँ। आई डू अ फ्यूजन ऑफ बोथ द आर्ट्स, मतलब फोक आर्ट को यूजिंग कंटेम्प्रेरी पेन एंड इंक टेक्निक ये करती हूँ। रिसेंटली मेरी पेंटिंग वर्चुअली लूव्र में डिस्प्ले हुई थी, सो दैट इज़ वन ऑफ द अचीवमेंट्स आई कैन से दैट आई हैव अदर देन मेनी अवार्ड्स। और या आई एम ऑल्सो एन IT प्रोफेशनल, आई एम स्टिल वर्किंग, बट आई थिंक अब अंजलि जी के साथ मिलके वी आर गोइंग टू रॉक, सो होपफुली I will be fully into painting soon. So that's my intro. Thank you. So अब मैं ज़रा आप लोगों से बुके ऑफ आर्ट के बारे में थोड़ी बात करना चाहूँगा। अंजलि मैडम द फाउंडर हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है, एक बार ज़रा उनके तालियाँ हो जाए। उनके साथ को फाउंडर मिस्टर नरेंद्र यहाँ पे मौजूद है। वैसे नरेंद्र जी और अंजलि मैडम दोनों एक अलग ही लेवल के आर्टिस्ट हैं। अंजलि मैडम खुद, उनका एक टॉक शो है, उनको जाना जाता है विद द नेम मनचली अंजलि, बड़ा, और उनके बारे में मैं आपको ज़रा और बताऊंगा। सो जब हम आर्ट के बारे में बात करते हैं, व्हेन यू स्पीक अबाउट आर्ट, अंजलि मैडम का जो थॉट प्रोसेस है, जो जज्बा है, जो एनर्जी लेवल है, वो एक अलग ही लेवल पे है। और
मैं क्यों ये कहता हूँ, क्योंकि अंजलि मैडम इज नॉट समबडी हु इज इनटू पेंटिंग आर्ट, बट द लव शी हैज टुवर्ड्स इट, द वे शी अप्रिशिएट्स, जिस तरह से वो आर्ट की कदर करते हैं, वो बहुत ही अलग है। और उनके साथ मिस्टर नरेंद्र, वैसे नरेंद्र जी बहुत कम बोलते हैं, नॉर्मली नरेंद्र जी का टास्क है यहाँ पे आके बोलना, बट नरेंद्र जी नहीं बोलते ज़्यादा, तो उनके बारे में भी मैं आपसे कुछ शेयर करना चाहूँगा। ही इज़ ऑल्सो एन आर्टिस्ट, ही इज़ इनटू movies, theater movies, and he is also a kitchen artist. He cooks very well. He cooks very well. मैं आप सभी को एक खाली ऊपर से बात बता देता हूँ, करेले की सब्जी इनकी बेस्ट है। So if you have a thought process कि हमें करेला नहीं पसंद है, okay, नरेंद्र सर से एक बार जरा बात कर लेना, उनके हाथ का करेला खा लेना, फिर मे बी आपका नजरिया बदल जाएगा। अब हम जरा बुके ऑफ आर्ट इस बिजनेस मॉड्यूल द एंटायर कैंपिंग के बारे में बात करते हैं। सो द कॉन्सेप्ट दैट वी रन ऑन इज ब्रांड, प्रमोट, सेल। हमारे जितने भी आर्टिस्ट हैं जो ऑन बोर्ड है, वी जस्ट डोंट क्यूरेट आवर ओन पेंटिंग। जैसे मैंने बताया, अंजलि डज नॉट पेंट पेंटिंग्स बाय हरसेल्फ, ओके, शी इज होल एंड सोलली इनटू बिल्डिंग अ ब्रांड, promoting and then selling. Normally wherever you are in a exhibition or something, जो curator रहता है himself is a painter, himself is an artist. And जब मैं बता रहा हूँ तो you do understand from a business point of view, आप समझ सकते हो business point of view से कि वो पहले खुद को प्रमोट करेंगे, करेक्ट? यहाँ पे ये चीज नहीं है, यहाँ पे आप सभी को एज अ ब्रांड ट्रीट किया जाता है, आप सभी को प्रमोट किया जाता है, आप सभी के लिए ब्रोशर्स बनाए जाते हैं, ब्रोशर्स में आपका आर्टवर्क उसे प्रमोट किया जाता है, सोशल मीडिया पे उसे रीच स्प्रेड किया जाता है। एंड अगेन जब सेल करने की बात आए तो दे टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द एंटायर प्रोसीजर, मेकिंग श्योर दैट इट रीचेस द राइट सेट ऑफ क्लाइंटल। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, जो हमारे बायर्स। द बिगेस्ट चैलेंज दैट वी सी इन दिस करंट वर्ल्ड ऑफ आर्ट, पेंटिंग है, पेंटिंग लोग देखते हैं, पेंटिंग को अप्रिशिएट करते हैं, बट देन वो उनके घर तक नहीं पहुंच पाती है। आप लोग में से कौन इन बातों पे एग्री करता है? प्लीज जरा अपना हाथ ऊपर कर दीजिए। मोस्ट ऑफ यू, ऑल ऑफ यू, apart from the gentleman over there, everybody agrees to the part, and which is totally fair, as you said you are not a painter. Sir, what do you do by profession? I am an IT engineer. IT engineer. I am an electronics and telecommunication engineer. I थोड़ा मेरे बारे में भी जरा बता देता हूँ. So I did my studies from Mumbai, Dombivli, Zondade. I did engineering and then I realized कि लाइफ में थोड़ा अलग कुछ करना चाहिए, and I got into event management and marketing because I had a girlfriend that time जिसके पॉकेट एक्सपेंसेस की ज़रूरत थी. Okay, realized that I have the passion, I have the caliber to speak, to be standing in front of an audience. Then I decided to be a anchor or a corporate trainer. अभी लास्ट 6-7 साल हो गए, I am a full-fledged corporate trainer. I'm into team building activities और ये सब चीज़ों में काफ़ी मुझे भी मज़ा आता है. I'm passionate about it. I love traveling, and that is one of the most important reasons that I am associated with the team Bouquet of Arts. अब ज़रा हम थैंक यू अब ज़रा हम बात करेंगे अंजलि मैडम से. अंजलि मैडम प्लीज़ हमारे ऑडियंस को 2 शब्द आपकी तरफ से. थैंक यू फॉर द एप्रिसिएशन एंड थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर कमिंग. मैं ये कन्वर्सेशन हिंदी में रखूँगी ताकि हम सब कंफर्टेबल हों. तो आई स्टार्ट विद के आप मुझसे पहला क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि आप आर्टिस्ट हैं क्या. मैं आर्टिस्ट नहीं हूँ, मैं आर्ट परफॉर्मर हूँ. कहते हैं कि ड्रॉ करना, डांस करना, दिस ऑल इज़ आर्ट. अगर इस सब को अगर जो आर्ट मानता है तो येस आई एम एन आर्टिस्ट. एंड क्यूरेशन में मैं कैसे आई, तो इट वॉज कि आई वॉज टीचर. एक्चुअली आई एम 43, 20 years I've done teaching only. I was teaching English and I used to take tuitions. I used to make projects of the students, and even my kids also, they are my kids, they are my daughters. So रात को 12 बजे उनकी ड्राइंग वगैरह मैंने बनाई है. तो I was having that थोड़ा सा अपने अंदर आर्टिस्ट. And even in school I used to complete my friends notebook, drawing notebook, क्योंकि मेरी स्केचिंग थोड़ी अच्छी थी. तो it was के then I started with, फिर उसके बाद ऐसे हुआ कि लॉकडाउन हुआ. आप सबको पता है लॉकडाउन में सबके अंदर का पैशन बाहर आया था. तो मैं भी होस्टिंग करती थी. एक्चुअली स्कूल्स वगैरह में एनुअल फंक्शन फिक्स था कि प्रिंसिपल यूज्ड टू से दैट आई हैव टू सी आफ्टर द स्टेज. तो आई स्टार्टेड होस्टिंग शोज.
क्योंकि मैंने एक्चुअली मैं टिकटॉक बनाना स्टार्ट किया था. आई यूज टू परफॉर्म, मी एंड माई हस्बैंड. वी केम अप विद अ यूट्यूब सीरीज पप्पू आनी उसकी बाइको, बिकॉज आई एम महाराष्ट्रन एक्चुअली, महाराष्ट्रन मैरिड टू पंजाबी. तो हमने इस तरह से वो भी, बिकॉज एज ही इज़ फ्रॉम फिल्म इंडस्ट्री तो डायरेक्शन ईजी हो गया. देन उसके बाद मेरा जो शो है, किसी डायरेक्टर ने देखा, ही सेड कि यू आर वेरी गुड इन स्पीकिंग, व्हाई नॉट यू स्टार्ट होस्टिंग अ शो. सो आई स्टार्टेड विद माई टॉक शो, द वर्चुअल टॉक शो. आपको पता है वर्चुअल उस टाइम पे बहुत चल रहा था, द अंजलि अरोड़ा टॉक शो. सर भी मेरे शो पर गेस्ट रह चुके हैं एंड इवन कुरेश सर ऑल्सो. So the tagline of my show was unfolding the passion journeys. I started with the actors, मतलब because it was very easily accessible. मैंने गोविंद नामदेव जी का लिया है और काफ़ी, मतलब it has completed 100 shows. 100 episodes वो complete हो रहे थे and around जब 30 episode complete हुए, I started with taking the interviews of the fine artist. बहुत सारे artists, मतलब I was like amazed to hear to their passion stories, and उनकी passion story we used to make the show reel for the artist. Passion stories जब मैं उनकी सुनती थी, every time the challenge they were speaking about was how to sell the art. Everyone was saying हम बहुत अच्छा आर्ट करते हैं. Of course they were doing, मतलब एक से एक आर्टिस्ट हमारे इंडिया में है and I will just salute all of them. फिर मैंने थोड़ा थोड़ा स्टडी करना स्टार्ट किया. 50 episodes I've done with the fine artists. वासुदेव कामत जी, अच्युत पल्लव जी, ये सब मेरे शो पर आ चुके हैं. तो उनका एक्सपीरियंस सुनकर सबका मैंने यही देखा पैशन जर्नी में कि लाइक दे लव आर्ट बाय पैशन. प्रोफेशनली उसको कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं बिकॉज ब्रेड बटर भी चाहिए. सो इट वॉज द चैलेंज. देन आई स्टार्टेड विद फर्स्ट चांस मुझे शो इवेंट करने का दिया था इंटरनेशनल इंडियन फोक आर्ट गैलरी ने. इट वॉज फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, सेंथिल विल सर थे. तो ही सेड के वाई नॉट यू होस्ट अ शो इन मुंबई फॉर मी फॉर आर्ट. तो हमने कमल नयन बजाज हॉल, यू माइट बी नोइंग एवरीवन. सो वहाँ पे हमने बहुत बड़ा शो किया था. इट वॉज द टॉप मोस्ट शो. मुंबई में पहली बार इंडियन फोक आर्ट का इतना बड़ा शो नहीं हुआ था, पहली बार हमने किया था ऑर्गेनाइज. वेयर जे स्कूल ऑफ आर्ट के स्कूल ऑफ आर्ट के जो भी बड़े बड़े पर्सनालिटीज़ थे वो उन्होंने विज़िट किया. इवन हमने वो बात फडनाविस जी तक भी पहुंचाई थी कि वी आर डूइंग दिस शो. दैट टाइम पॉलिटिकली वो बिजी थे, ही डजंट केम बट ही हैज़ गिवन द अप्रिसिएशन लेटर एंड एवरीथिंग. देन मुझे और भी चार्ज मिल गया. यू नो, जब हम बच्चे की तारीफ़ करते हैं तो बच्चा और अच्छा करने लग जाता है. तो इट वॉज लाइक दैट. फिर मैं और लोगों से और आर्टिस्ट के साथ जुड़ी. कुरेश सर से भी आई थिंक सो आई एम कनेक्टेड फ्रॉम 1 year विद बोथ ऑफ यू. फिर हमने शो किया जिसमें कोश्यारी सर आए थे. गवर्नर सर को जब मैं गई थी अपॉइंटमेंट लेने, ही सेड मी व्हाई यू वांट टू बी एन आर्टिस्ट, मतलब व्हाई यू वांट टू प्रमोट एन आर्टिस्ट. आर्ट में पैसा नहीं है. ही सेड मी दिस थिंग. ही वॉज चेकिंग मी एक्चुअली कि व्हाई आई एम, व्हाट इज़ माई मोटिव बिहाइंड डूइंग दैट शो. तो उन्होंने मुझे कहा तुम्हें क्यों करना है. मैंने उनको पूरी अपनी स्टोरी बताई. बिकॉज बहुत फॉर्मेलिटीज़ होती है, यू नो, कि पॉलिटिकल पीपल इतनी जल्दी नहीं आते किसी के भी शो पे. बॉम्बे आर्ट सोसाइटी में हम करने वाले थे. आप लोगों में से कितने जनों ने देखी है बॉम्बे आर्ट सोसाइटी? देखिए Yes. वहाँ जानते होंगे, वहाँ लोगों को लाना इट्स अ चैलेंज. ये मुझे पता नहीं था बिकॉज आई वॉज न्यू. एंड बिकॉज मैंने वो जो शो किया था वहाँ पे मैंने स्पेशली बच्चों के लिए, एक बडिंग आर्टिस्ट के लिए ही केम, बट ही सेड कि माई सिक्योरिटी विल बी देयर, बहुत आपको तैयारियाँ करनी पड़ेगी. मैंने तैयारियाँ की काफ़ी. तो इस तरह से वो सर आए एंड इवन कुरेश सर की पेंटिंग किसी कमिश्नर सर को पसंद आई थी और उन्होंने शो के बाद ली. तो आई वॉज वेरी हैप्पी अबाउट इट. एंड कोश्यारी सर आए इसलिए क्राउड लाने का मुझे टेंशन नहीं हुआ. बहुत लोग फ़ोन कर के पूछ कर आ रहे थे बिकॉज इट वॉज कोश्यारी सर. सब कोई पेंटिंग बना के ला रहा था उनकी सब एंड ऑल. एंड उन्होंने काफ़ी बहुत अच्छी वो स्पीच दी थी. उसने मेरा लेवल यहाँ से यहाँ तक हो गया. देन आई स्टार्टेड विद द इंटरनेशनल शो. हमने वर्ल्ड आर्ट दुबई किया.
हमने कमल नयन बजाज में शो किया, मतलब अराउंड आई हैव डन ओनली 5 इवेंट्स आई विल से इन 5 years, बट नो इवेंट्स आई स्टार्टेड इन 2 years, सो 5 events आई हैव डन इन 2 years, मगर मैंने अपना नॉलेज बढ़ाया है. मतलब इफ़ यू स्पीक अबाउट दी आर्ट बैकग्राउंड, मैंने क्यूरेशन कोर्स किया, आई एम डूइंग बिजनेस मैनेजमेंट. फॉर वॉट? फॉर लर्निंग दीज थिंग्स. इवन मेरी मीटिंग्स चलती है कॉर्पोरेट्स के साथ, I go to them, we talk to the interior designers, we ask them कि जब आप लाखों रुपए लगा के एक घर सजाते हो तो आप हज़ारों की पेंटिंग क्यों नहीं लगा सकते? तो उन्होंने भी बहुत सारी बातें हमसे की. इवन जैसे मेरा नाम अंजलि है, तो आई डोंट बी अफ्रेड टू कम्युनिकेट टू एनी पीपल. राहुल नार्वेकर जी आए थे जब हमारे शो पर, आई टोल्ड हिम कि सर आर्ट के लिए पॉलिटिक्स कुछ नहीं करता. ही सेड you plan something, come to me, let's talk, we will do something. ये उन्होंने मुझे वादा किया था, जस्ट अभी नवंबर की बात है. ओके, तो वो बात हुई. तो what I have seen is, जैसे अगर आप हम बिजनेस की बात करें, आर्ट आजकल कमर्शलाइज हो चुका है. आई होप यू ऑल विल एग्री. जैसे हमें था ना कि मेरी पेंटिंग, मेरी बनाई हुई, मेरी अटैचमेंट है इस पेंटिंग के साथ. आप जब बायर को दिखाते हो ना, ही इज़ नॉट सीइंग योर अटैचमेंट, ही इज सीइंग कितने पैसे लगेंगे, कौन सी दीवार पे लगेगी, इससे अच्छा कुछ मुझे प्रिंट मिल सकता है क्या. यू नो दे आर लुकिंग फॉर द प्रिंट्स ऑल्सो, कि इसका कुछ रेप्लिका मिल जाए. वही चीज़ अगर शिवाजी महाराज की, विद ड्यू रिस्पेक्ट, पेंटिंग अगर कोई बना कर बेचता है, वही सेम कॉपी उनको उधर सड़कों पे भी मिल रही है. तो ये जो चीज़ें हैं, बहुत सारे चैलेंजेस हैं आई नो आर्टिस्ट के साथ, बट मुझे इसमें अच्छा ये लगा कि आर्टिस्ट ने फिर भी आर्ट करना नहीं छोड़ा है. नो वन हैज़ टोल्ड कि मैं अभी आर्ट नहीं करता हूँ. लॉन्ग बैक आई यूज़ टू डू. लॉकडाउन ने सबका, अगर किसी ने छोड़ा भी होगा तो वापस वो अंदर का जगा ही दिया होगा. तो आज अगर हम बात करें तो मैं सर, आज की जो मीटिंग है ना, स्पेशली इसलिए है कि आप लोग मुझे अपनी प्रॉब्लम बताओ और मैं आप लोगों को बताऊं कि हमें क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं एज अ क्यूरेटर, एज अ प्रोमोटर. नाउ व्हेन आई स्टार्टेड क्यूरेटिंग, मुझे बोलने लगे अंजलि अरोड़ा इज क्यूरेटर. आई विल से इन मुंबई आई एम द ओनली lady curator. There are many lady curators. The show which I have done, the team I have made in very short period is to a different level. So curator, they started saying, मैंने बोला curator मतलब होता है, if you see the definition in a Google, it is saying who looks after your painting in an exhibition. That is curator. मैंने आपकी पेंटिंग ली, लगाई, 3 दिन है, 4 दिन है, 4 दिन बाद आपको वापस दे दी. मुझे बताइए कि आपकी फर्स्ट डे की फीलिंग और लास्ट डे की फीलिंग अगर कोई एक्सप्रेस कर सकता है तो एनीवन कैन स्पीक अबाउट इट. कि फर्स्ट डे आप आज बहुत खुश हो, फर्स्ट डे पे आज मेरी पेंटिंग लगने वाली है, आज मेरी एग्जीबिशन है, हम अपने सारे फ्रेंड्स को इनवाइट करते हैं, आना प्लीज़ आना, हाँ पक्का आना. वो बोलेगी मैं 4 बजे ऑफिस से छूटती हूँ, अच्छा वहाँ से आते हो आप 5 बजे आ जाना. वी कीप ऑन डूइंग इट, दिस इज अ फैक्ट. प्लीज़, मैं किसी को पर्सनल कुछ कमेंट नहीं कर रही हूँ, ये फैक्ट है, आप सब भी जानते होंगे. देन व्हाट हैपेंस, पेंटिंग पड़ी रहती है, लोग आते हैं, दिस इज़ गुड, दैट इज़ गुड, देन दे गो. 3 दिन हो गए, लास्ट दिन है, भाई प्लीज़ अपनी पेंटिंग लेके जाओ. एम आई राइट? सही. ऐसा नहीं है कि मेरी पेंटिंग लगते ही बिक जाती है. आई ऑल्सो पुट द फर्स्ट डे इज देयर. सर को एक्सपीरियंस है, फर्स्ट डे पे चाहे मैं किसी भी ऑर्गेनाइजर के अंडर हमारी एग्जीबिशन करूँ, वी हैव डन नाउ मुंबई आर्ट फेयर लेटेस्ट, मैं ऑर्गेनाइजेशन पे रिलाई ही नहीं करती हूँ कि वो कुछ करेगा मेरे लिए, बिकॉज मुझे पता है वो सिर्फ मेरी पेंटिंग लगवा देगा, दैट्स इट. वॉट आई डू अ प्रॉपर प्लानिंग कि अगर सेल नहीं हुआ ना, कम से कम लोगों को पता होना चाहिए कि ये आर्टिस्ट है जो ये पेंटिंग बनाता है, कि ये आर्टिस्ट है जिसका ये फोटे है, इसकी ऐसी पेंटिंग बनती है. व्हाट हैपन्स, अभी नहीं गया, 2 दिन बाद आपको कॉल आएगा, अरे मैंने आपका देखा था,
आप ये बनाते हो ना, मुझे ये बना के चाहिए. दिस इज़ कॉल्ड एज ब्रांडिंग एंड प्रमोटिंग. फर्स्ट डे पे ऑलवेज बी इन्वाइट सम हाई प्रोफाइल पीपल, मे बी फ्रॉम फिल्म इंडस्ट्री. आई विल नॉट से फिल्म इंडस्ट्री या पॉलिटिक्स से पेंटिंग खरीदते हैं, नहीं खरीदते हैं, लेकिन उनका नाम ही काफ़ी है. सर अगर देखिए 2 फंक्शन हो रहे हैं, एक में अंबानी गए और एक में कोई करोड़पति गया, उसने सब कुछ खरीदा. अंबानी सिर्फ जाकर आया, उसने कुछ खरीदा नहीं. नाम कौन से शो का होगा? अंबानी वाले शो का. बिकॉज अंबानी अपने आप में एक ब्रांड है जिसको प्रेस प्रोमोट करती है. अंबानी को सब जानते हैं, तो प्रेस पहले उनका न्यूज़ छापेंगे, हमारा नहीं डालेंगे. भले हमारे यहाँ पूरा सोल्ड हो गया, मगर वो हमारा नहीं डालेंगे. अंबानी वहाँ मुहूर्त करके गए, रिबन काट के गए, वो डालेंगे. तो दिस इज़ व्हाट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ अ ब्रांडिंग एंड प्रमोशन. कि मैंने अगर फर्स्ट डे पे किसी बड़े एक्टर को या किसी को बुलाया, तो यू विल गेट दैट प्रमोशन, ब्रांडिंग. साथ में फ़ोटोज़ हो जाती है. एंड दैट एक्टर ऑल्सो, मेरे ख्याल से मेरे काफ़ी एक्टर अभी आप दोनों को तो जान ही गए. एक्टर्स ऑल्सो स्टार्टेड नोइंग यू. फेस्टिवल के सारे इसमें हम लोग कर रहे हैं एक्चुअली, बिकॉज अब राजेंद्र पाटिल जी ने कहा कि वी विल बी गिविंग यू मोर प्रमोशंस. अभी उनका जो आर्ट जर्नल है, हमारे जो दिल्ली शो है, उसमें हमारे हर आर्टिस्ट को वहाँ पे आर्ट जर्नल में उनकी फ़ोटोज़ विद दी आर्ट वर्क, एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी प्रमोटेड. तो इट वॉज लाइक कि मुंबई आर्ट फेयर में सर की पेंटिंग, राकेश श्रीवास्तव जी जो हैं आए थे हमारे शो पर, उनके साथ सर की फ़ोटोज़ थी, वीडियोज़ हो रहा था. आई पुट इन द फेसबुक. आई एम हैविंग अराउंड 9.7 पीपल विथ मी इन ऑन फेसबुक. तो राकेश सर के एक डायरेक्टर ने वो फ़ोटो देखी, ही सिलेक्टेड द आर्ट वर्क और उनका वर्क सोल्ड हुआ था. द गार्डन सीरीज़ जो बनाते हैं वो. सो इट वॉज द वे के फ़ोटोज़ अभी आप देखेंगे हमारे हर फंक्शन, हर इवेंट के वीडियो प्रमोशंस, फोटोग्राफी बहुत होती है. एंड वी गिव दिस टू फ्री ऑफ चार्ज टू ऑल द आर्टिस्ट. वी डोंट चार्ज फॉर दैट. एंड सेकेंडली, जब प्रमोशंस होते हैं, एक तो ये वे होता है सेल होने का कि ब्रांडिंग एंड प्रमोशन से सेल हो रहा है. इवन नाउ वी आर हैविंग द कॉन्ट्रैक्ट जो है, हम लोग बात कर रहे हैं बड़े बड़े जो कॉरपोरेट्स हैं उनसे. यू माइट हैव सीन, आपने कभी भी होटल, कभी यहाँ पे भी आप देखेंगे पेंटिंग्स लगी हुई है. नो वन, नथिंग इज़ ओरिजिनल. सब लोग ये लोग प्रिंट्स लगाते हैं. आई लिव इन लोधा पलावा, आई गो टू क्लब हाउस, वहाँ पे भी सब प्रिंट. कहूँगी कि आर्टिस्ट की गलती कहीं से है, बिकॉज आई डोंट टॉकिंग अबाउट यू. बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, मैंने देखा है जहांगीर में शो लगाते हैं या किसी में भी, लास्ट डे पे अगर कोई आके बोलता है मैं ये सब लेता हूँ, इतने में दे दो, दे देते हैं. यस और नो? जिसका प्राइस आपने 10,000 लगाया है, आप उसको 4,000 में भी दे देते हो. मैंने खुद ने आर्टिस्ट से लिया था, 6,000 में लिया, एंड वो खुद बेच रहे थे 25,000 में. तो वही कहीं ना कहीं आप लोग अपने आप को डीवैल्यू या डिग्रेड कर रहे हो. क्योंकि मैं समझ सकती हूँ आप लोगों को लगता है कि ये जो एग्जीबिशन में खर्चा किया उतना तो निकल आएगा, लेकिन सर वो एक टाइम की वैल्यू पाने के लिए आप लोग डिग्रेड हो जाते हो. मतलब वो हमेशा सोचेगा कि आप इतने में दे ही दोगे. बहुत सारे लोग ऐसे बात करते हैं, लास्ट डे पे जाने का एग्जीबिशन में दे देते हैं. They will wait till the last day. Yes. To break your confidence. ये ट्रेंड किसने बनाया है? आप आर्टिस्ट लोगों ने. आप लोगों ने ही बनाया कि लास्ट डे पे हम सस्ते में दे देंगे, तो इसलिए जो उसकी कीमत आप सोच के बैठे हो वो नहीं मिलती है. What I do, ठीक है, हमने लगाया. मेरी एक पेंटिंग है, मैं आपको मुंबई आर्ट फेयर की बताऊंगी, जो ग्रीष्मा की पेंटिंग थी. वो सोल्ड हो गई थी. फर्स्ट डे पे वो लेडी ने बोला 5,000 मुझे एडवांस ट्रांसफ़र किया, लास्ट डे आई विल कम एंड टेक. ओके, 25,000 की डील हुई थी. शी इज़ कमिंग ऑन द लास्ट डे. अरे यार 10 में दे दो, आज लास्ट डे, अभी क्या घर ही लेके जाना ना. मैंने बोला आपकी मेरी डील हुई है कि आपने मुझे 25,000 में ये पेंटिंग लेके जाना है, आपने 5,000 एडवांस दिया है. अरे दे दो, अभी 10 में लास्ट डे है. मिला मैम मैं इसको अपने घर ले जाऊँगी, और वो पेंटिंग मेरे घर पर लगी हुई है नए वाले. क्योंकि मैं अगर एक बार ऐसे कर दूंगी तो मेरे और भी आर्टिस्ट हैं, मेरे और भी इवेंट्स हैं, वो हमेशा यही एक्सपेक्ट करेंगे कि अंजलि अरोड़ा लास्ट डे पे कम कर देती है, एडवांस दे दो, ख़त्म करो. सो इवन
मैं मतलब थोड़े वैल्यूज़ हमें बनाने पड़ेंगे कहीं ना कहीं कि भले मुझे अभी नहीं मिले इसके पैसे, इट्स ओके, बाद में मिलेंगे। नहीं जा रही थी तो पड़ी थी ना, पड़ी रहे। एम आई राइट? किसी को नहीं कर रही हूँ मैं, ये अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। अच्छा, मैं आपको बताऊँ वही दुबई में जाके बिकती है ट्रिपल रेट में। या आई नो दैट। अभी क्या हुआ, दैट वाज माय फर्स्ट शो इन जहांगीर। तो आई एम अ वेरी न्यू आर्टिस्ट, बडिंग आर्टिस्ट, लाइक वेरी न्यू इन दिस प्लेटफॉर्म। सो मुझे ऐसा लगा कि ओके, एटलीस्ट इट्स गेटिंग कन्वर्टेड, सो लेट्स टेक द चांस। सो ये भी चलता है एक आर्टिस्ट के माइंड में कि घर पे पड़े रहने से अच्छा है कि आई एम आउट इन द मार्केट। मोर देन गेटिंग द मनी, इट्स important for us somewhere or the other, for the new artists especially, to be out in the market and let people know that we are here. So I let the paintings go from that point of view. See, it's not like that. उन्होंने किसी को नहीं बताया होगा कि उन्होंने आपसे पेंटिंग लिया या आपके नाम का कहीं उन्होंने प्रमोशन नहीं किया होगा। Right. मिला आपको कहीं से प्रमोशन? आपको किसी बायर ने बोला अरे मैंने आपकी पेंटिंग उनसे ली है? नहीं, ये तो नहीं। The thing is, देखिए मैं आपको छोटा सा एक एग्जांपल देती हूँ। एक चीज़ होती है जो नॉर्मल, जो हमारा मंगलवार पेट, रविवार पेट लगता है वहाँ मिलती है, वही चीज़ थोड़ी अच्छी क्वालिटी के मॉल में मिलती है, राइट? मंगलवार पेट वाला सस्ते में क्यों दे देता है? क्योंकि उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, या उसको अपने प्रोडक्ट पे कॉन्फिडेंस नहीं है कि ये आज जाएगा कि नहीं जाएगा। मगर मॉल वाला बोलेगा इट्स ओके, आई विल पे द रेंट, पड़ी रहे पेंटिंग 10 दिन 2 महीने, मैं मगर उससे ही मैं बेचूंगा। प्लीज़ इंक्रीज योर लेवल्स। आप अपनी पेंटिंग को वैल्यू नहीं देंगे तो सामने वाला कैसे देगा? एम आई राइट? कि आपको खुद को अब जैसे कुरेश सर हैं, अभी टेल अबाउट कुरेश सर की पेंटिंग्स जो अभी गार्डन सीरीज़ है वो बहुत हॉट टॉपिक है, मेरे बायर्स के साथ मैंने शेयर की हुई है। जो अभी नया वो बना रहे हैं, इट इज़ ऑफ 7,000। एक बायर ने के घर पे शादी थी, उसको गिफ्ट देने थे, तो उन्होंने मुझसे बोला कि मुझे 3 पेंटिंग चाहिए मगर मुझे 5,000 में चाहिए। मैंने बोला अभी सर मुझे ही 5,000 में दे रहे हैं, ऑफकोर्स मैं भी कुछ कमीशन लेती हूँ तो मैंने बोला कि इट्स नॉट पॉसिबल यार सर मैंने बोला सर आई एम नॉट गेटिंग एनीथिंग एंड शी इज़ माई फ्रेंड। उसके घर में सर ने बोला नो आई विल गिव ऑन 5,000 यू सी वॉट एवर। तो दिस इज़ द थिंग, वो अपनी जगह सही थे कि उन्होंने 5,000, चलो कभी कभी थोड़ा होता है कि चलो 5,000 या 6,000 बोल के 5,000, इट्स ओके। आई ऑल्सो टेल देम थोड़ा ज़्यादा सही रेट, ताकि मुझे पता है लोग नीचे आएंगे, इट्स ओके। मगर अपने 50% कम करके बेचना इज़ नॉट राइट। और आपको जैसे ये हमारी पेंटिंग कहीं ना कहीं मैंने आर्टिस्ट से इंटरव्यू में सुना है कि ये मेरा बच्चा है जो मैंने ऐसे इसको पाला है, बड़ा किया है और अब ये बन गया है, अब ये किसी के घर पे जाएगा। तो आप अपने बच्चे को वैल्यू ही दे के नहीं भेजोगे तो क्या मतलब? दैट इज़ आई वॉन्ट टू से। अभी मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगी कि क्यूरेटर्स की या प्रोमोटर्स की कौन सी बात आप लोगों को नहीं अच्छी लगती? बी फ्रैंक, मेरे मुंह पे मुझे गाली दे दो, इट्स फाइन। मैं जानना चाहूँगी प्लीज़, तो ही हम उस चीज़ को डिस्कस कर पाएंगे। या मैं बताऊँ मुझे जो थोड़ा मैंने सुना है, पहला कि आप लोगों को लगता है एग्जीबिशन में हमें पैसे भरने पड़ते हैं, आप लोग कमीशन लेते हो तो पैसे क्यों लेते हो, राइट? सर मैं बताती हूँ, अभी जैसे मैंने इंडिया आर्ट फेस्टिवल में और हार्ट ऑफ आर्ट जो अभी नेस्को में बहुत बड़ी एग्जीबिशन होने वाली है, आप सबको अभी पता चल ही गया होगा, उसके बहुत प्रमोशन हो रहे हैं, उसका अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होने वाला है। ये दोनों में मैंने 20 लाख इन्वेस्ट किया है। मेरे हार्ट ऑफ आर्ट में अराउंड 14 स्टॉल्स हैं। इंडिया आर्ट फेस्टिवल के जो भी सबसे बड़े बूथ हैं अभी तीनों, दिल्ली में, मुंबई आर्ट फेयर, यू नो, इंडिया आर्ट फेस्टिवल नेहरू में जो है ग्राउंड फ्लोर पे होता है फॉर गैलरीज। वी ऑल्सो डू इन्वेस्टमेंट, राइट? अब मैं आपको बोलूँ कि अगर मैंने समझिए मुझे कुछ जो है पैनल 7,000 का मिला, ठीक है, मैं आप लोगों को बोलती हूँ 10,000, ठीक है, उस पर आप लोग बोलते हैं प्लीज़ 9 में दे दो, ओके। मैंने वहाँ पे कितने कमाए? 2,000,
वो भी एक्चुअली मैं कमाई नहीं है, वो 7,000 के पीछे मुझे GST भी लगता है जो मैं आर्टिस्ट से नहीं लेती। नेक्स्ट फर्स्ट डे पे हम लोगों की एग्जीबिशन की स्पेशलिटी है, मैं आर्टिस्ट को बोलती हूँ आप लोग नहीं हो इट्स फाइन, वी आर हैविंग टीम जो हैंडल कर लेगी, आप लोग नहीं आओगे तो भी चलेगा। 11 बजे आपको पहुँचने की कोई टेंशन नहीं है, मैं खुद अपने एग्जीबिशंस में होती हूँ 11 से 6। वी हैव फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, पर्सनल इंटरव्यू ऑफ द आर्टिस्ट वी डू। अभी जैसे ये हैं वीडियोग्राफर, ये एक दिन के जो लेते हैं चार्जेस मुझसे जो भी, आई एम नॉट चार्जिंग यू पीपल, आई एम टॉकिंग अबाउट मी। देन वी विल गो फॉर द ब्रोशर्स। आई डोंट से राजेंद्र पाटिल सर के मुझे ब्रोशर्स चाहिए क्योंकि वो देंगे नहीं। ब्रोशर्स वी मेक ऑफ आवर ओन, क्योंकि वो ब्रोशर्स यू नो इंडिया आर्ट फेस्टिवल में ब्रोशर बिकते हैं, वो फ्री में नहीं देते हैं, वो बेचते हैं, वो फ्री में एक ही देते हैं शायद। डैट आई डू। वहाँ पे हैंगिंग से लेके सब सर्विस, मतलब इवन बोलने की सर्विस, मतलब क्यूरेटर्स की भी कोई सर्विस। जैसे आप डॉक्टर्स के पास जाते हो, कंसल्टेशन फीस भरते हो, वो तो आपको दवाई बाहर की दिख के देता है, तो भी आप उसको 500 क्यों दे के आ जाते हो, उसके पैसे तो नहीं लगे ना, बट डेट इज़ द सर्विसेज। इवन इफ़ यू डोंट माइंड, आर्टिस्ट जो एक पेंटिंग बनाता है, कैनवस से लेके ब्रश, कलर, 5,000 खर्चा पकड़ो एक पेंटिंग के पीछे, मगर आप लोग बेचते हो उसको 15,000 20,000। वाई? दैट इज़ योर टैलेंट। एम आई राइट? तो आप लोगों की टैलेंट का इतना वैल्यू तो प्रोमोटर्स के सर्विसेज का वैल्यू क्यों नहीं? और जो पेंटिंग सेल होती है, वी चार्ज द कमीशन, बिकॉज आपकी एक पेंटिंग सेल करने के लिए मैं 20 जनों से बात करूँगी और मुझे उसकी वैल्यू भी कम नहीं करनी है। आपको 5,000 चाहिए, आपको 5,000 ही मिलेंगे। अगर उन्होंने कम कराया, इट विल गो फ्रॉम माई कमीशन, दैट आई गारंटी। ओके, सो दिस इज द वे वी वर्क। मतलब हमें भी क्यूरेटर्स को भी, आई एम नॉट हियर टू you know promote myself as a curator or promoter. I want to know you from you people what you are expecting about the art industry. आप लोगों को क्या लगता है कि क्या चेंजेस होने चाहिए जिससे आर्ट इंडस्ट्री थोड़ी आगे जाएगी? कुलकर्णी सर, आप तो प्रमोशन कम पड़ता है। प्रमोशन कम पड़ता है। सर आपको क्या लगता है प्रमोशंस में क्या क्या होना चाहिए? प्रमोशंस में आर्टिस्ट का इंफॉर्मेशन आर्ट लवर्स, आर्ट बायर्स तक ठीक तरीके से जाना चाहिए, थ्रू ब्रोशर और थ्रू इंटरव्यूज और थ्रू द अदर मीडियाज। देन पीपल विल नो अबाउट द आर्टिस्ट, दे विल नो अबाउट द वर्क which the artist is doing. She is doing abstract, I am doing traditional. Yeah. Somebody will be doing portraits. So, but people are not knowing only. Yes. So this is correct promotion of the artist. Yeah, true. It is not being done. It is only displaying the arts and just telling ये पुरानिक साहब का है, ये सोनल जी का है, ये इनका है, इतना ही होता है। True. पे फॉर प्रियार हमारा हर मंथ एक आर्ट अफेयर्स, कलर कैनवस और बॉम्बे फिल्म फेम करके एक मैगजीन है, उसमें हमारे एड्स आते हैं हर महीने जो भी आर्टिस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनके। द थिंग इज वी आर ऑल्सो कमिंग अप विद वन मैगजीन, अभी मैं उसका नेम रिवील नहीं करूँगी, इट मे बी अराउंड अगस्त और September एंड और October फर्स्ट वीक वी आर गोइंग टू रिलीज दैट। So let's see, hope for them in Mumbai. Let's see, keeping my fingers crossed. उससे क्या होगा कि many artists, आर्ट वर्ल्ड के, जैसे अभी नीता अंबानी जी ने जब मुहूर्त किया था, आप सब लोगों ने देखा होगा कितनी पब्लिसिटी हुई थी, कितना हुआ था, तो वैसा ही कुछ मैं भी प्लान कर रही हूँ, नॉट द नीता अंबानी का लेवल, लेकिन बस उसी का थोड़ा छोटा लेवल। वी शेयर द सेम बर्थ डेट्स एक्चुअली, मी एंड नीता अंबानी। सो दिस इज़ द थिंग वी आर थिंकिंग ऑफ। येस सर, प्रमोशन बहुत मैटर करता है कि अगर मैंने किसी को अभी जैसे अगर आप लोगों ने जो मेरे साथ फेसबुक पे कनेक्टेड है, इनको पता होगा कि मैं रोज़ कुछ ना कुछ डालती रहती हूँ, कभी कोई लोग पक भी जाते होंगे अंजलि का क्या है रोज़ का। तो आई पुट ऑन बिकॉज प्रमोशन इज़ वेरी नेसेसरी एंड द सोशल मीडिया एग्जिस्टेंस बहुत ज़रूरी है आज के दिन में, बहुत ही ज़्यादा, बिकॉज हम लोग का आधे से ज़्यादा टाइम उसी में जाता है। हम लोग, मुझे खुद को ऐसा है कि सुबह उठते ही पहले फेसबुक चेक करना, वो आदत हम सबको होगी शायद, तो
दिस इज़ द थिंग. और कोई चैलेंज, कोई सर आप भी सीनियर आर्टिस्ट हैं और आप कब से मुझे ऑब्जर्व कर रहे हैं, काफ़ी मेरी बातें ध्यान से सुन रहे हैं, मैं आपसे भी सुनना चाहूँगी कुछ. मैंने अभी तक 50 शोज में पार्टिसिपेट किया Wow. है, ग्रुप शो एंड इंडिविजुअल. लॉकडाउन के बाद थोड़ा जो ट्रेंड चेंज हो गया है ना लोगों जी. का. मैंने अभी जनवरी से मेरा खुद का एक आर्ट के बारे में सोच शुरू किया. अरे भाई मैं 15 बरस काम कर रहा हूँ लेकिन कुछ उसमें मुझे रिजल्ट ही नहीं मिल रहा है, मेरा टर्नओवर नहीं हो रहा है. टर्नओवर ये जो एक फैक्टर है ना आर्ट का, वो मुझे नहीं लगता किसी ने अचीव किया है कि साल में मुझे इतना पैसा कमाना है आर्ट के ऊपर. समझो टैक्सेबल इनकम जैसे कि इतना पकड़ लो 10 लाख. नोबडी इज हियर, आई डोंट थिंक एनीबडी इज हियर हु हैव अचीव्ड दैट टारगेट. तो मैंने ऐसे ही सेट कर दिया कि मुझे ये टारगेट ही अचीव करना है. इसके बाद चाहे उसको लोगों 5 साल लग जाए. तो जनवरी से अब तक मैंने ऐसे ऐसे कुछ पैटर्न मेरे चेंज कर दिए. एक तो पेंटिंग में, काम में और सेलिंग में, कि मेरा 2 लाख का सेलिंग हो गया अभी तक. ये वेरी नाइस. नाइस रिजल्ट मिल, अच्छा रिजल्ट मिल मुझे. तो अभी मेरा फोकस ऐसे ही रहता है कि ये जो मैं पेंटिंग बना रहा हूँ, अभी कल भी मेरा डेमो हो गया इनकिया बालगंधर्व में, कि मैं 2 दिन पहले सोच रहा था कि वहाँ जाके क्या करूँ. तो मुझे किसी को आर्ट दिखानी नहीं थी, जो वो तो देखने वाले ये सब लोग. हाँ. वहाँ मुझे वही पेंटिंग बनानी थी जो सेलेबल है. ऐसा ही नहीं कि पोर्ट्रेट बना दिया. अरे किसी को बैठ के पोर्ट्रेट बनाओ, वो कौन लेने वाला है. आप खाली आपका टेक्निक दिखा रहे हैं तो उसका कुछ मतलब. मैंने वो पूरा डायमेंशन ही चेंज कर दिया, मेरा सोच उसके बारे में. करता हूँ मैं ऐसे पैशन, एज ए पैशन प्रैक्टिस करता हूँ. लेकिन जब मुझे ज़्यादा से ज़्यादा वक्त मैं देता हूँ ना, वो मेरा काम लोगों को पसंद आए और वो खरीदे, इसके ऊपर ही मेरा फोकस रहता है. तो आर्टिस्ट को मैं बताना चाहता हूँ कि आप ऐसे ही काम करना चालू कर दो. कि कल भी उनके यहाँ देखा तो बहुत सारे आर्टिस्ट बोल रहे हैं मैं हॉबी आर्टिस्ट हूँ. मेरे बोला क्यों हॉबी आर्टिस्ट है? तो खुद को ही डिस्करेज कर रहा है. 5 अगर समझो तुम 5 बरस काम कर रहे हो तो आप यू आर नॉट ए हॉबी आर्टिस्ट. आप सब चीज़ों से गए हैं, तो उसको हॉबी आर्टिस्ट मत, खुद को मत बोलो. सर एक्चुअली मैं वो ये सोचते हैं कि अगर मैं डॉक्टर भी हूँ और आर्टिस्ट भी हूँ, मतलब मैं हॉबी आर्टिस्ट हूँ. दैट इज डिफरेंट. हाँ, लेकिन पूरा टाइम आप उसमें ही काम कर रहे हो, पूरा वक्त दे रहे हो, तो आप खुद को ऐसे डिस्करेज मत करो कि मैं कहीं ना कहीं हॉबी आर्टिस्ट के भी लेवल हो जाते हैं ना, फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, तो उस हिसाब से वो प्रोफेशनली हो जाते हैं, जैसे आपने कहा 5 साल में. दैट्स गुड सर, बहुत अच्छा है. Excuse me, sir. One thing. You are saying you made certain changes. Yes. What changes did you make? That you're not saying. टेक्निक, काम के जो टेक्निक्स है. Like what? पहले मैं वाटर कलर ही पकड़ के बैठा था कि वाटर कलर का ही काम करूँगा. मुझे ऐसे एक्सपीरियंस आ गया कि वाटर कलर के आजकल बायर्स ही कम है. हाँ, ट्रू. उनके पता नहीं वो क्यों ट्रेंड चेंज हो गया, कि उनको रियलिस्टिक काम पसंद ज़्यादा नहीं है, और जो अभी कंटेम्पररी जो बोलते हैं वो वाटर कलर में इतना पॉसिबल भी नहीं है, उसके लिमिट्स है वो. तो एक तो मैंने चेंज किया कि एक्रेलिक पे और ऑयल में शिफ्ट हो गया. या बाद में जो रियलिस्टिक काम करता था उसको सेमी रियलिस्टिक में कन्वर्ट कर दिया, कि उसमें टेक्निक डेवलप की कि जो पैचवर्क क्या होता है, जो वैल्यूज़ में काम कैसे करते हैं. कि लोगों को क्या है कि समझो कुछ मैं लैंडस्केप बना रहा हूँ, उसमें वो लोगों को रियलिस्टिक पसंद आजकल ट्रेंड नहीं है वो, तो उसमें वैल्यूज़ में काम कैसे करना है. तो मैंने खुद डेवलप किया, मेरा उसमें कुछ एकेडमी है ही नहीं. मैं रोज़ दिन भर ऐसे टेक्निक डेवलप करता रहता हूँ, 1-2 घंटे. नेक्स्ट पॉइंट पे मैं आ रही हूँ, फ्लेक्सिबिलिटी. यस आर्टिस्ट का. As you are saying that some techniques you have done. Yes. But then as an artist, you know, every artist over here is specialized in his or her speciality. Now, as for example, I am a realistic artist. Okay. Tomorrow you tell me that change your technique into some, what is the trend now going on, as I agree with you that right now the realistic trend is little not there. But there are people who like realistic art. Yes, there are people. So I cannot change my technique because I am only born with that. So the minute I try to do something different, it becomes totally out, and it's like I will say, "ये क्या बना दिया?" I mean, I cannot change that technique. So then what to do? That is very difficult. I have this reply. आपका पैटर्न बना दिया.
सर फ्लेक्सिबिलिटी मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि हम अपना बनाने का वे ही चेंज कर दें। जैसे अभी आपने स्टार्ट किया है विद द गोल्ड थिंग, तो दैट इज आल्सो यू हैव चेंज योर टेक्निक्स एंड यू हैव डन द इट इज नॉट द चेंज, इट इज अपडेटिंग इट। I just have to give it a real serious thought that my technique remains the same, but I add something new to it. Yes, that is it. I cannot change my technique. हम लोग मारियो गेम खेलते थे, बच्चे वही अभी खेलते हैं, बट उसका नाम सबवे सफर है, समथिंग लाइक दैट। द सेम थिंग इज दिस, बट वी हैव चेंज अपडेटेड दैट वर्जन, दैट इज द फ्लेक्सिबिलिटी। यही होता है कि हम कहीं ना कहीं अपने आप को अडेप्ट नहीं करते कि अभी वर्चुअल दुनिया चल रही है तो सीख लो ना। आप लोग आर्टिस्ट हो, आप लोग सब कुछ सीख सकते हो, बिकॉज यू पीपल आर क्रिएटिव। मैं आर्टिस्ट नहीं बोलती हूँ, एक्चुअली आई यूज द वर्ड आर्ट क्रिएटर्स, बिकॉज यू आर क्रिएटिंग आर्ट। किसी के और के दिमाग में वो नहीं है जो आप बना रहे हो। यस, गणपति बप्पा बहुत जने बनाते हैं, बट हर किसी का जो वे होता है और जो एक कनेक्शन किसके साथ जो हो जाता है ना, वो हर किसी का अपना लेवल है। इवन अभी सॉरी टू इंटरप्ट, या एक बात और रहेगी कि दो चीज़ें बतानी थी कि जो पेंटिंग आर्टिस्ट है ना जी, जो नहीं तो ये कला पकड़ो, इसको परफॉर्मिंग आर्ट पहले नहीं बोलते थे। हाँ, तो ये लास्ट 10-20 साल से मैंने देख रहा हूँ कि जो परफॉर्मिंग आर्टिस्ट है ना उसको डिमांड ज़्यादा है। वो हाँ, जैसे कि वो डेमो करता है, तो मैंने वो चालू कर दिया। कुछ भी मुझे पहले इतना डर लग रहा था कि अरे इतने लोगों के सामने में कैसे पेंटिंग, लाइव पेंटिंग, तो पहले 3-4 इसमें मेरा वो डर निकल गया। और अभी मैं ऐसे ही बातें करके पेंटिंग बना देता हूँ उनके साथ। तो जहाँ भी मुझे डेमो के लिए बुलाते हैं, वो परफॉर्मिंग आर्ट हो गया कि लोगों को अरे ये आदमी ऐसे भी करता है काम, इतना फ्रीली करता है काम, तो वो एक पॉजिटिव पॉइंट है। और दूसरा मैंने क्या किया कि मेरे हु इज़ माई कस्टमर, आइडेंटिफाई योर कस्टमर, जो बैंक वाले करते हैं ना, KYC। मुझे एक इनॉग्रेशन के लिए मैंने नाम लेता हूँ, मैं सुहास एक बोटे को बुलाया था हमने, एक बोटे फर्नीचर। वो बोल रहे हैं कि आप मुझे क्यों बोल रहे हो, मुझे तो मैं आर्टिस्ट हूँ, लेकिन वो अभिनय के, लेकिन मैं थोड़ी आपके पेंटिंग खरीदने वाला हूँ। आप ऐसे लोगों को बुलाओ जो पेंटिंग खरीदने के लायक है। तो एक इंडस्ट्रियलिस्ट, नहीं तो कोई जो 5 स्टार होटल्स है, सर वो लोग कभी भी एग्जीबिशन से नहीं खरीदते। नहीं, वो बात अलग है, लेकिन जो अगर समझो आता है कि उसको कुछ लगा कि अरे भाई इसने मुझे बुलाया तो कम से कम 1-2 पेंटिंग खरीद। एग्जीबिशन से कॉर्पोरेट्स इसलिए भी नहीं खरीदते हैं क्योंकि जैसे कोई कॉर्पोरेट आपके एग्जीबिशन में आता है या कोई इन्फ्लुएंशियल पर्सन आता है, व्हाट हैपेंस इज हम उनका नंबर मांगने लग जाते हैं। मैं अपने आर्टिस्ट को पहले से इंस्ट्रक्शन, प्लीज डोंट आस्क द नंबर्स। हम उनका नंबर मांगने लग जाते हैं ना, तो वो मुझे स्पेशली बताते हैं, इसने नंबर लिया, उनको बोल देना कि मुझे कांटेक्ट ना करें। ऐसा ऑलरेडी एक आर्टिस्ट ने मेरे किया था, तो इट हैपेंस। अभी इवन मेरे जो बायर्स हैं, वी आर हैविंग वन बायर्स ग्रुप, उसमें हम लोग क्या करते हैं, इससे पहले मैं आपको बताऊंगी कि हमने एक पॉलिसी इस साल से स्टार्ट की है। इट इज़ अबाउट बाय आर्ट ऑन EMI। इट इज़ जैसे हम देखेंगे कि आजकल सब कुछ EMI पे मिलता है, इसलिए हर किसी के घर में सब कुछ है। आर्ट क्यों नहीं है? क्योंकि आर्ट EMIs पे नहीं मिलता। We do get. I sell on Fine Art America. There are EMIs for it. हाँ, तो I have started in India about it कि I tell my buyers कि अगर कोई पेंटिंग 50,000 के ऊपर की है या मेरे कोई नज़दीकी है तो 35 के ऊपर की है, तो I will give on EMI। आर्टिस्ट को पूरे पैसे मिल जाएंगे, बट उनका हम लोग पेटीएम बिजनेस के थ्रू या तो किसी बैंक के थ्रू क्रेडिट कार्ड वगैरह स्वाइप करके लेते हैं। ही हैज़ टू पे ऑन EMI, तो उनको ईजी हो जाता है। अभी लोधा पलावा में हमारा एक शो हुआ था, वहाँ पे पेंटिंग 2.5 लाख रुपए की थी। उमा शंकर साहब, ये शिफ्टेड टू आर एरिया ना नाउ, तो उनकी 2.5 लाख की पेंटिंग थी, उसको बहुत पसंद आई। बोलता है अरे मैं तो एम्प्लॉई हूँ, मेरी 50,000 की सैलरी, आई कैन नॉट अफोर्ड दिस, मगर मुझे ये बहुत पसंद आई। तो उसके बाद मैंने सोचा कि लेट्स व्हाई नॉट सेल आर्ट ऑन EMIs। सो आई स्टार्टेड विद दैट। इवन EMI पॉलिसी आई स्टार्टेड फॉर माई आर्टिस्ट। इट इज़ कि जब होता है कि हमें इंटरनेशनल शो करना है, बहुत सारे आर्टिस्ट सोचते हैं मुझे दुबई जाना है, एक बार तो करना है, वर्ल्ड आर्ट दुबई एक बार तो करना है। हमेशा मैं ये सोचती हूँ, ऐसा सब लोग बोलते हैं मुझे। प्रॉब्लम क्या हो जाती है? फंड्स, क्योंकि दुबई जाने के लिए एक बंदे का खर्चा 4 लाख आराम से जाता है, राइट सर? सो क्योंकि 2.5 समझिए 1,70,000 आपको एग्जीबिशन के भरने पड़ते हैं, और बाकी जो है टिकट्स हो गए, होटल स्टेइंग हो गया,
थोड़ी मजाक मस्ती हो गई जो हम करते वहाँ जाके तो ऐसे हो जाता है। तो इसलिए तो हमने भी EMI पॉलिसी स्टार्ट की है विद द आर्टिस्ट, जहाँ जिसको इंटरेस्ट होगा वो डिटेल्स हम आपको दे देंगे, जहाँ आपको कुछ अमाउंट हर महीने जमा करना है हमारे पास, एंड वी विल गिव यू द जितना अमाउंट आपका जमा होगा उसके बेस पे हम लोग आपको थोड़ा ज़्यादा मतलब 2 एग्जीबिशन फ्री देंगे। समझिए आपको अगर समझिए फॉर एग्जांपल मेरे एक एग्जीबिशन में 20,000 का पैनल है, आपके जमा होंगे अगर मेरे पास 30,000 तो आपको मैं 2 एग्जीबिशंस में अलाउ करूँगी, या एक ही एग्जीबिशन में 2 पैनल, इट इज़ योर चॉइस। इवन फॉर इंटरनेशनल एग्जीबिशंस ऑल्सो वी आर प्लानिंग, वी आर कमिंग अप विद सम पॉलिसी, क्योंकि क्या होता है मेनली प्रॉब्लम हो जाती है लेडी आर्टिस्ट को, खास करके जिनको घर से सपोर्ट नहीं मिलता है आर्ट के लिए स्पेंड करने का तो इसलिए उनके लिए भी हमने अलग अलग मतलब हमने भी पॉलिसीज सोची है जिसमें हम आर्टिस्ट को EMI पॉलिसी देंगे, दे कैन पे ऑन EMIs एवरी मंथ, और उसके बाद ये दे कैन हैव अ शो विद अस। उसमें जैसे कि कहा मैंने, जिस तरह से मैंने कहा कि हमारा जो शो होता है विद द ब्रांड प्रमोट एंड सेल पॉलिसी, इवन हमारे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस होते हैं जो ईयरली कॉन्ट्रैक्ट होता है। सर मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आप हमारे साथ मेरे ख्याल से 1 साल से जुड़े हुए हैं। 2 साल 2 2.5 3 साल 3 साल हो गए, सॉरी मैं 1 साल। वही बोलो। सर हाउ वाज योर एक्सपीरियंस विद अस? Very nice. Sir, my husband wants that you should come here and speak. तंग करने वाला। I also have done many exhibitions with other art curators, solo shows also, but after meeting Anjali, she is a step ahead of all, and I am actually a businessman. I am the field of interiors, so I am a businessman first, then an artist, and I can sense person कि कौन सा आदमी कहाँ जाने वाला है, उस पे मैं खर्चा करूँगा। And I have almost been throughout with all her shows, which she does after that, with all her branding and all her अभी क्या करते हैं जो भी हमारा we are in contract. Contract is not a small amount, it's a big amount. Yes. But I have already paid it because I see my future in her, that I will be in that level with her. So she is right now, I would say, one of the best promoters I have seen so far. I've been with a lot of promoters and I think in Bombay and Delhi, but no one has come anywhere close to her. और मैंने सर को ये बोलने के कोई भी फ्री पैनल नहीं दिया। सोनल जी आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ मेरे को भी खड़ा होना पड़ेगा। हाँ अभी मैं अंजलि जी के बारे में कुछ कहना चाहती हूँ। सो अंजलि जी ना, आपने देखा है कभी किसी मकड़ी को पानी में डाल दो, हाथ पैर मार के बाहर निकलने की कोशिश करती है, ऐसे ही हाथ पैर मारती है। मतलब आई हैव सीन हर रनिंग अराउंड कि नहीं ये पेंटिंग मुझे बेचनी है, और वो पेंटिंग बिकवाती है। अभी शी टुक माई पेंटिंग, ये पेंटिंग मुझे दे दो, ये बिकनी है। एंड देन शी इज़ कॉलिंग मी, हो जाएगा टेंशन मत लो। मतलब शी इज़ कीपिंग मी अपडेटेड ऑल्सो कि मैं कर रही हूँ। एंड शी सोल्ड दैट पेंटिंग जो चावला जी को बेची थी, मतलब टू एन एक्टर्स प्लेस। अभी रिसेंटली भी एक बेची है उन्होंने। मतलब द काइंड ऑफ एफर्ट दैट गोज इन, आप देखते हो तो फिर आपको लगता है कि यार यू हैव इन्वेस्टेड इन अ राइट प्लेस, आपने कोई नुकसान नहीं किया। एंड आई हैव अवेल्ड द EMI ऑप्शन जी, क्योंकि इन स्पाइट ऑफ हैविंग ऑल सपोर्ट आई हैव 2 kids और सब कुछ बहुत महंगा है। सो आई हैव अवेल्ड द EMI ऑप्शन। आई थिंक इट इज़ द बेस्ट थिंग दैट वी हैव डन एज अ कॉन्ट्रैक्ट। एंड मैंने आपके साथ and she has paid I think so 3 EMIs, right? Yeah. Down payment and 3 EMIs, और अभी इनका जो नेक्स्ट EMI इनको भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि इनकी एक पेंटिंग सोल्ड हो चुकी है। सो इट्स लाइक दैट। तो व्हाट आई ऑल्सो ट्राई कि आप लोगों का समझिए, जैसे ही हमारे साथ मेंबरशिप स्टार्ट होता है, वी टेक योर ब्रोशर्स, वी डू योर वी मेक अ शो रील ऑफ योर्स, आप लोगों का इंटरव्यू लेते हैं आपके बारे में पूरा। तो वी आर हैविंग अ ग्रुप ऑफ बायर्स, उसमें दे नेवर शेयर देयर पर्सनल नंबर। आपने मुझसे पूछा भी था कि मैं नंबर पूछ लूँ, पॉसिबिलिटीज, कुछ भी वो लोग नंबर शेयर नहीं करते हैं, बिकॉज उनको क्या लगता है आर्टिस्ट फिर हमारे पीछे पड़ेंगे, ऐसा उनको लगता है। तो हम लोग उधर सिर्फ संडे ही कन्वर्स करते हैं, एवरी संडे वी कन्वर्स विद देम
उनको हम लोग पेंटिंग्स दिखाते हैं। इफ दे से ग्रुप में कि हमें गणपति बप्पा की पेंटिंग चाहिए, तो मेरे पास जितनी भी गणपति बप्पा की है आई शेयर विद देम। फिर उनको पसंद आती है तो दे से एंड आई टेल द आर्टिस्ट कि ये बात है, मतलब क्लोजिंग द डील वाली बात हो जाती है, आई डू दैट। तो इट्स लाइक दैट। तो मेरा मेन एम ये रहता है कि अगर आपकी पेंटिंग सेल होगी ना तो आप लोग मुझे छोड़ेंगे भी नहीं। बिल्कुल ऑब्वियसली अगर ना मुझे छोड़ेंगे ना मुझे बोलते ना बैक बिचिंग करेंगे ये नहीं बोलेंगे अरे मैंने उधर लगाया इतना पैसा सब वेस्ट हुआ। तो इट इज लाइक दैट। देयर इज वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ट्रांसपेरेंसी। या मतलब आपकी अगर पेंटिंग ओवर प्राइस है तो वो आपको बता देती है कि नहीं, यू हैव ओवर प्राइस दिस। सो ऐसा उनके साथ हुआ था नंदा जी के साथ। ही हैज मेड द हॉर्स। उन्होंने जब लगाया हॉर्स तो वो 90,000 का लगाया जो उन्होंने दुबई में रेट लगाया। तो आई टोल्ड हर कि नंदा जी दिस इज़ ओवर प्राइस्ड। नहीं ये ठीक है इतना। उनकी पेंटिंग का बायर आया, पसंद करके गया, मगर वो वापस नहीं आया बिकॉज उनको वो ओवर प्राइस था। तो वी डू द आर्ट कंसल्टेंसी ऑल्सो, मतलब आई एम ऑल्सो कनेक्टेड विद सम आर्ट कंसल्टेंट्स, आर्ट क्रिटिक्स। इवन आपको लगता है कि मेरी ये पेंटिंग कैसी बनी है मुझे जानना है तो वी आर हैविंग द आर्ट क्रिटिक्स। मैं उनसे पूछ के आई कैन टेल यू कि ये उनका मिला है। जो भी इवन दुबई में भी हमारे पास आर्ट क्रिटिक्स आए थे, सर के साथ काफ़ी अच्छा कन्वर्सेशन हुआ। तो दिस इज़ द वे कि ये मैं नहीं कहूँगी कि हमारे साथ जुड़ने के बाद यू विल सेल द पेंटिंग टुमारो और 1 मंथ बैक। एवरीथिंग नीड्स अ टाइम। 3 महीने सिर्फ प्रमोशन एंड ब्रांडिंग होता है, क्योंकि उसमें हम आपके वीडियोस बनाते हैं, आपके पेंटिंग्स का प्रॉपर फोटोज़ लेते हैं जिसका ब्रोशर बनता है। एंड दैट ब्रोशर्स माई सेल्स टीम टेक टू द कॉरपोरेट्स, टू द होटल्स। वहाँ पे हम देकर आ जाते हैं हार्ड कॉपी कि दिस इज़ द थिंग। देन उनको जब भी रिक्वायरमेंट होती है वी कीप ऑन फॉलोइंग अप। इस तरह से वी डू द वर्क कि हमें सेल्स को मद्देनज़र रखते हुए, लेकिन बायर को मैं ये नहीं बताऊँगी कि तुम खरीदोगे तो ही मेरा भला होगा। अपना एक एटीट्यूड मेंटेन करते हुए, मेरे आर्टिस्ट की रिस्पेक्ट रखते हुए वी डू द। So the person can take a photo of it from their phone. Yes. That's it I want to say. Thank you so much. If anyone wants to speak about anything, we are having our website. It is in making actually the Boa Gallery. Okay. Actually हमारे Bouquet of Art Gallery का short form है Boa. Boa Gallery. तो even we are selling from that is a e-commerce gallery we are making. तो वहाँ से वो लोग बाय कर सकते हैं। हमारी जो वेबसाइट है वो कॉन्स्टेंटली गूगल पे प्रमोट होती रहती है। वी आर हैविंग अवर एंटरटेनमेंट एंड आर्ट्स। एक्चुअली हमारी कंपनी का पहले नाम था वीडियो शॉट्स आर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट, मगर आर्टिस्ट को कन्फ्यूजन होता था कि वीडियो शॉट्स क्यों। वो एक्चुअली में ऐसे था कि हम आर्ट्स में भी हैं, एंटरटेनमेंट में भी। तो अभी हमने बुके ऑफ आर्ट गैलरी इज़ अवर आर्ट फील्ड एंड वीडियो शॉट्स एंटरटेनमेंट हमारी यूट्यूब सीरीज़ बनती है। वी गिव रोल्स टू द बडिंग। पोटेंशियल होना चाहिए। जैसे हर कोई बोलता है मैं आर्टिस्ट हूँ, तो ऐसे नहीं। पोटेंशियल इज मैटर। मतलब आर्टिस्ट होना भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। योर वर्क शुड बी अ क्वालिटी वर्क, दैट इज द थिंग। एनी मोर क्वेरीज? डू यू डील इन NFTs? NFTs we are planning for, मगर अभी तक NFT में सक्सेस नहीं दिखी है। बट वी हैव स्टार्टेड विद द ऑक्शन पार्ट। ऑक्शंस वी हैव स्टार्टेड। तो ये EMI के बाद मेरा नेक्स्ट वो ही है स्टेप। क्योंकि मैम मैं बताऊँ आपको कि मैं उस लेवल को टारगेट नहीं कर रही हूँ कि जो मेरा एक पेंटिंग छोड़े खरीद ले और भूल जाए। मैं उस लेवल को टारगेट कर रही हूँ जो हमसे ही खरीदते रहे। बुके ऑफ आर्ट गैलरी से ही उनकी डिमांड आती रहे कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। दे शुड नॉट गो टू एनी अदर आर्ट, जो भी आर्ट बेचते हैं वगैरह। मेरा टारगेट ये है कि हमारे बायर्स फिक्स्ड हो जाए हमारे साथ। So is the reverse also true for artists? Means? Sorry? You got it. Yes. That we cannot then go to other places. No, it's not like No, that. No, she is doing Gandharva today. You can do on your personal level what you need, but you can. once you be here, I don't think so you will require to go somewhere else. I put zero effort We in feel what selling. we feel like if it is not working here, let's try somewhere. If it's not working here is the question. It's not okay, working here. okay, see, we It need- always works here. Unless you do your own solo show, you can do all those, no problem. I But you just- can do other good shows. हमारी गैलरी की खासियत है कि मैं कभी भी आर्टिस्ट को नहीं बोलती हूँ कि आपको आना ही पड़ेगा।
आप अपनी पेंटिंग दे सकते हो, बिकॉज आई अंडरस्टैंड अपार्ट फ्रॉम आर्टिस्ट देर आर मदर्स, फादर्स, कोई प्रोफेशन में है, कुछ तो उनको नहीं टाइम है कि वो 7 दिन पूरे आए. बट आई टेल देम कि फर्स्ट डे आएंगे तो थोड़ा एक उनका प्रमोशन हो जाता है, जो भी हाई प्रोफाइल पीपल आए उनके साथ फ़ोटोज़ हो जाते हैं, बिकॉज अपना प्रोफाइल बनाना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है. सबके पास अपना एक जो प्रोफाइल बनता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है. लाइक जो बायर्स होते हैं हाँ ये इस लेवल के आर्टिस्ट हैं, वो जो बताना भी बहुत ज़रूरी होता है. क्योंकि आई वांट कि अगर कोई आर्टिस्ट हमारे साथ जुड़ा है तो मेरा बायर उसको कहीं पे भी डिग्रेड ना करे, डी वैल्यू ना करे. इट शुड बी जो उनकी रिस्पेक्ट है, विद ड्यू रिस्पेक्ट वो आर्ट बाय करे. दैट इज द थिंग. ये आपसे भी है और सीनियर आर्टिस्ट से भी है जी कि just now you talked about making a profile. So my question is, being a budding artist, how do I make a profile of my own which is presentable, keeping my individuality? I'm having some examples I can share with you. See, being a budding artist is not doing the many exhibition is not your profile. It is okay how you can speak about your art, communication, how you express your art. Because artists express their art through the canvas and colors. Many times it happens they बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं, बहुत अच्छा बनाते हैं, मगर वही चीज़ वो बोल नहीं पाते हैं. तो उस चीज़ को मतलब आप अपने बारे में, अपने पैशन के बारे में अगर प्रोफाइल में लिख दोगे और आपने थोड़ा बहुत जो वर्क जब से भी आप कर रहे हो वो लिखोगे तो इट विल क्रिएट अ गुड प्रोफाइल. मैं कुछ ऐड करूँ जस्ट फॉर गोवा. जो आप प्रोफाइल की बात कर रहे हो ना, कई बार आप बोल नहीं पाते हैं. सो व्हेन यू आर वर्किंग विथ हर, शी मेक्स यू स्पीक. वो क्या करती है, वो क्वेश्चंस पूछती है. हाँ, आपने तो देखा है. हाँ, आप लोगों ने मेरा इंटरव्यू देखा है कि नहीं पता नहीं, बट शी वाज आस्किंग मी क्वेश्चंस बिकॉज आई वाज लाइक मैं बैठ के बोलूँ क्या मेरे प्रोफाइल के बारे में. सो शी वाज आस्किंग मी क्वेश्चंस. सो दैट इज़ व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू बी एसोसिएटेड विद समवन हु कैन ब्रेक. सी एज एन आर्टिस्ट आप सब नहीं कर सकते. ओके, हम पेंट कर सकते हैं, उसको बेचे भी हम, अपने आप को प्रमोट भी हम करें. दैट इज़ एटलीस्ट फॉर मी इट्स नॉट माई कप ऑफ टी. मेरे को पेंटिंग कर दिया और दे दिया, आप उसको बेचो, मुझे प्रमोट करना है आप करो. सो शी एक्चुअली केम टू माई हाउस, भैया के साथ ऐसे सच भैया के साथ में, सर के साथ में प्रॉपर एक पोर्टफोलियो शूट आउट हुआ था, प्रॉपर लाइट्स वगैरह लगा के पेंटिंग्स का, प्लस वो इंटरव्यू इन्होंने शूट किया. मैंने अपने आप से कुछ बोला नहीं है वहाँ पे, और वो कहीं एक टेक में नहीं हो गया, बिकॉज आई एम नॉट एन एक्सपर्ट. मैं कोई परफॉर्मिंग आर्टिस्ट नहीं हो, राइट. वो टेक्स कर करके कि नहीं आप ऐसे बोलो, आप ये बात करो, तो शी हेल्प्स आउट. Okay. We help you people to how to face the camera, how to speak about it, and I think so your interview already have 12,000 views. हो गए हैं. Because we also do the paid promotion on social media. हम लोग सोशल मीडिया, क्योंकि देखिए आजकल ना सोशल मीडिया पे भी जब तक आप पैसे नहीं खर्च करो कुछ नहीं होता है. तो हमारे पेज जो है वो प्रमोट होते रहते हैं, जिसकी वजह से व्यूज़ मिलते रहते हैं. एंड आजकल व्यूज़ और लाइक्स का जो वॉट एवर, तो वी हैव अ टारगेट बायर्स. मतलब हम लोग ऐसे नहीं करते कि खाली व्यूज़ आने चाहिए, मगर सही बंदे, मतलब ऐसे वीडियोस देखने वाले खाली आर्टिस्ट का इंटरव्यू देखे ऐसे नहीं. जो बायर्स हैं उसमें टारगेट सेट करने का होता है कि विच पीपल यू वांट दैट दे शुड सी. वी सेट द टारगेट अबाउट. और कुछ पूछना है? या Sir also is into interiors. So Yes. So it's a question to both of you. I'm just looking at this room. Okay. So there are 3 paintings. Yeah. So there's a square panel, and it's a print. Okay. So the question is like, there's a print. तो वो प्रिंट में मुझे मालूम है कि मेरा जो जगह कितना है, उतने जगह पे मुझे फ्रेम बिठाना है, और वो फ्रेम के अंदर वो मेरे को वट एवर पेंटिंग प्रिंट वो बिठाना है. तो समथिंग इज डिक्टेटिंग मी द बोलते हैं ना, जो बाहर की चीज़ें डिक्टेट कर रही हैं कि मेरी पेंटिंग कैसी होनी चाहिए. अभी इसकी साइज अगर लंबी होगी तो कहीं ना कहीं वो एसिमेट्रिक हो जाएगा. हाँ. या 3 आर्टिस्ट की पेंटिंग होगी, वो भी शायद एसिमेट्रिक हो सकता है स्टाइल में वगैरह. तो ये चीज़ें आप कैसे हैंडल करते हैं? सर डिपेंड करता है कि बायर की डिमांड क्या है. आप अगर बोल रहे हो एग्जीबिशन की बात, एग्जीबिशन की बात नहीं. No, what I come to see your point is, then in that case, the interior designer who is buying your thing for say this room, I will place an order to you. That okay, listen, my wall I have is 7x3 4 walls. I like this artwork of yours. Can you do this in 2x2 or 3x2? Okay. Or what can you do? You show me
and I will place an order and then put it. So that's no big deal. You have to place an order for that. Not necessary that what you have done that only has to be put on the wall. I do sometimes get order work. Commission work. Commission. What you say commission work? Whatever. I say order. You say commission. Same thing. No, sir, actually मैं अभी जैसे हम लोग के अभी जैसे सर मैम की भी जो पेंटिंग गई, किसी ने अपना नया घर बनाया था तो उन्होंने बोला था कि मुझे ये पेंटिंग चाहिए. इट वाज क्या मिकी माउस. अच्छा, मिकी माउस की पेंटिंग चाहिए मेरे को अपने बच्चे के बेडरूम के लिए. उन्होंने ऑर्डर दिया था मिकी माउस के लिए, सारी बातें की सबकी, लेकिन जब मैम का मैंने ब्रोशर शेयर किया तो बोला अरे मेरी वाइफ ने बोला कि ये वाला अच्छा लग रहा है, तो उन्होंने सीधा वो ले लिया. तो कस्टमाइज पेंटिंग के भी वी टेक द कमीशन वर्क कि हम लोग इस पे बनाएंगे. इसी पे अगर मैं एक पॉइंट मेरा अच्छा हुआ आपने याद दिलाया. अगर मैं एक पॉइंट बोलूँ कि अगर मैं आपको बोलती हूँ कि आप मुझे ये पेंटिंग बना के दीजिए, ये रिक्वायरमेंट है, तो आप लोग मुझे क्या बोलेंगे? हाँ बोलेंगे, लेकिन समझिए हम लोग कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है. कोई एक नया पर्सन है, आपको बोल रहा है मेरे को पेंटिंग बना के दो. व्हाट यू विल से? साइज पूछेंगे, ठीक है. एडवांस यू विल आस्क कि मुझे थोड़ा एडवांस दे दो. देन आई विल थिंक कि ये कंफर्म्ड है कि आप मेरे से ही बनवाओगे. एम आई राइट? एक चीज़ जो मुझे भी कहीं ना कहीं शिकायत है आर्टिस्ट से कि जब आर्टिस्ट कोई साइन अप करता है हमारे साथ, पैनल बोलेंगे अच्छा ठीक है ये वाला मेरे लिए जगह बुक कर दो. देन इफ़ आई से कि यू हैव टू पे सम अमाउंट, देन यू पीपल से कि वाई आई शुड पे द अमाउंट. नवंबर में एग्जीबिशन है, मुझे अभी क्यों भरना है? आई ऑल्सो नीड कन्फर्मेशन ना कि आप आओगे ही तो मुझे किसी और को नहीं ढूंढना पड़ेगा. दिस इज़ द थिंग. मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप लोग मेरे साथ ऐसा, मतलब ये बोल रही हूँ कि ये ऐसा क्यूरेटर्स और प्रोमोटर्स को भी फेस करना पड़ता है. इवन ये भी होता है कि हम लोग अगर आप लोगों को कोई न्यू अपॉर्चुनिटी व्हाट्सएप पे भेजते हैं, 7-7 8-8 दिन तक रिप्लाई ही नहीं आता है. सीन मैसेज होता है. एटलीस्ट क्या होता है कि रिएक्ट करने से ना सर उनको लगता है कि येस यू हैव सीन द मैसेज. आप मत लीजिए, आप वहाँ पे मत करिए एग्जीबिशन. ये एक होता है मतलब बड़े बुजुर्ग कहते थे ना, कभी ना कभी किसी ना किसी की ज़रूरत पड़ ही जाती है सर. क्योंकि मैंने ये फेस किया है कि व्हेन आई स्टार्टेड विद आर्ट, जो मैंने फर्स्ट अपना एग्जीबिशन किया था, मैंने कम से कम पता नहीं कितने आर्टिस्ट को कन्विंस किया था टू डू द एग्जीबिशन विद मी, बिकॉज दैट वाज माय फर्स्ट शो. आई हैव टू एक्सप्लेन माई सेल्फ, आई हैव टू एक्सप्रेस माई सेल्फ, आई हैव टू कन्फर्म के येस आई कैन वर्क फॉर यू. वो फर्स्ट हुआ था एंड आज का दिन है 2 साल में मैंने इतनी मेहनत की कि नाउ पीपल आर कमिंग टू मी कि येस वी वांट टू डू एग्जीबिशन विद यू. अब ये जो आर्ट मीट का कॉन्सेप्ट है वो इसीलिए आया था. क्या होता है कि आजकल इतनी सारी एग्जीबिशंस हो रही हैं, आर्टिस्ट आर कन्फ्यूज, इतने सारे आते हैं मैसेज. आई अंडरस्टैंड आप लोगों का भी पॉइंट. हर क्यूरेटर आप लोगों को मैसेज करता होगा कि यहाँ है मेरे साथ करो, ये प्लॉट है, ये वो. आई विल सजेस्ट यू एज अ प्रोमोटर, सिर्फ आप बोल दो ओके. फिर बाद में अगर आपको करना है नहीं करना है, दैट इज़ अ डिफरेंट पार्ट. एटलीस्ट रिप्लाई टू दैट क्यूरेटर, क्योंकि हमारी भी कुछ इज्जत है. हम लोग डिजाइन्स बनाते हैं. मेरे हर एग्जीबिशन का एक ग्रुप बना होता है, जो अभी हार्ट ऑफ आर्ट में एक एग्जीबिशन है उसका ग्रुप बना हुआ है. तो वहाँ पे मैं कुछ ना कुछ डिज़ाइंस डालती हूँ कि देखो ये प्रमोशन चल रहा है, ये है. सब आर्टिस्ट देखते हैं ओके ठीक है. तो मैंने उस दिन ग्रुप, बिकॉज आई एम वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, सॉरी फॉर डैट, मैंने ग्रुप में लिखा कि भाई मेरे डिज़ाइनर ने मेरी 4 गालियाँ खा के सजा के ये बनाया है, प्लीज़ कुछ तो रिएक्ट करो, मैं उसको बोलूँ हाँ ठीक है ओके. तो सर ने बोला था इफ़ आई डोंट रिप्लाई मीन्स इट इज़ ओके. तो डैट मतलब वो एक वर्ड ऑफ एप्रिसिएशन हमारी पूरी टीम के लिए एक बूस्ट हो जाता है कि यस. Because I see all the things, and as I told you, like I immediately see any mistakes. So if there is a mistake, she will get a call immediately from my end that this is not this. It should happen the other way around. No, yes. When I see it, it's okay. I'm not replying. Means everything is okay. Silence not always. No, but I don't have so much also time also. So I have told her if my reply doesn't come. WhatsApp पे आजकल नया फीचर है, ऐसे दबा के रखोगे ये it will be. Okay, anyways, I'm not pointing to sir. तो it is nothing. मतलब ये चीज़ें थोड़ा होता है ना
ये कहते हैं हम लोग आर्टिस्ट थोड़े इमोशनल होते हैं, चाहे कौन से भी फील्ड के आर्टिस्ट हो। मैं तो बहुत जल्दी हर्ट हो जाती हूँ कभी कभी अगर मुझे कोई क्यूरेटर बोले अरे आप आर्टिस्ट नहीं हैं, आप कैसे आर्ट बेच सकते हो? अरे क्यों नहीं बेच सकते हो, आपको पेंटिंग बेचनी है, मैं पेंटिंग को समझती हूँ, मुझे बोलना आता है, मेरे पास बायर है, क्यों नहीं? किसने कहाँ लिखा है कि क्यूरेटर आर्टिस्ट भी होना चाहिए? नीता अंबानी को कोई नहीं बोलता। हाँ वो अंबानी है ना तो एक दिन अरोड़ा का भी नाम होगा। आप अरोड़ा हो? यस, वही मैंने बोला, एक दिन अरोड़ा का भी नाम होगा बिकॉज पीपल हम है ना आई एम नरेंद्र अरोड़ा। ये तो है ही। हाँ, he is the backbone, the spinal because husband का support और साथ में बहुत ज़रूरी होता है। तो even husband and my daughters cooperate very much. तो I'm proud of my family. कौतुक टन कि आई काउंट पेंसिल लीड कलर के साथ रिश्ता अच्छा नहीं है तो पेंसिल के साथ थोड़ा अच्छा है। पेंसिल पे हम कार करते हैं। आई ट्राई टू कार्व द इमोशंस और रिलेशंस ऑन पेंसिल लिप जस्ट लाइक दिस। So conceptual, I am a hobby artist. Actually, currently pursuing MBA right now. साथ में कर लेते हैं, थोड़ा बहुत ट्राई करते हैं। इधर के From नांदेड़ मैम। नांदेड़ महाराष्ट्र मराठवाड़ा। I request आंशिका, आप अपने आप को हॉबी आर्टिस्ट मत बोलिए, से आई एम अ पैशनेट आर्टिस्ट। सी बिकॉज नहीं बताए क्यों? बिकॉज इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू बैलेंस पैशन एंड प्रोफेशन। मैं जब टीचर थी तो मुझे जब मैंने अब जॉब छोड़ दी, आई वॉज वेरी गुड टीचर। प्रिंसिपल का अभी तक प्रिंसिपल को होप है कि शायद ये वापस आ जाए, इसकी आर्ट की दुकान नहीं चलेगी तो मैंने बोला मैम इट इज़ नो लुकिंग बैक, अभी मैं बहुत आगे चली गई हूँ। तो मुझे भी पता है कि जब मैंने टीचिंग जॉब छोड़ने तक भी मेरा वो चल रहा था कोविड टाइम में, टू बैलेंस दिस बोथ पैशन और प्रोफेशन और दोनों में सेम काम करना, तो इट इज़ ज़्यादा मेहनत लगती है। तो आप पैशनेट आर्टिस्ट बोलेंगे तो ये 1 mm का जो लेड रहता है उस पे इतनी बारीक कार्विंग करता है, मतलब वेरी यूनिक वर्क। और इतने छोटे उस पर कार्व करना बहुत मुश्किल है, मैग्नीफाइंग लेंस से करता है, हमने इसका लाइव भी देखा है। सो वेरी डिफरेंट एट सच ए यंग एज। ही ऑल्सो डज स्ट्रिंग आर्ट, जो उसने बताया नहीं है, वो जो कील लगा के करते हैं ना, आगे स्ट्रिंग आर्ट ही बोलते हैं ना। हाँ, ही ऑल्सो डज दैट। Same thing. The artists don't express themselves. He's one of them. But I have seen his work. Okay. Excellent work. अभी ला नहीं पाया, but if you see his portfolio, इतने छोटे से उसमें हाँ इतना डिटेल्स है। That's why मेरे से ये क्वेश्चन पूछा गया था कि पोर्टफोलियो पेंटिंग क्यों मंगवाए। एक्चुअली मुझे सबका आर्ट फॉर्म देखना था। दूसरा ये होता है कि हमारे रिकॉर्ड्स में एक हार्ड कॉपी होती है ना, वो ज़्यादा अच्छी होती है। व्हाट्सएप पे मुझे इतने सारे आर्टिस्ट पेंटिंग्स भेजते हैं कि मुझे सॉर्ट आउट करना पड़ता है पूरा, तो मुझे भी मिक्स हो जाता है कि ये किसकी पेंटिंग है, वो किसकी है। दैट्स व्हाई आई आस्क्ड फॉर, जो अगर लाए हैं तो बहुत अच्छी बात है। ऐसे करना सभी के ऐसे आर्ट वर्क्स भी सबको भी देखने के लिए भी मिले तो अच्छा है करके। आपको तो देखना है, हम भी आपसे नए हैं ना इधर से। ही इज गोइंग टू डू एक उन्होंने एक्टिविटी सोची हुई है आप लोगों के साथ। तो अगर आप लोग की परमिशन हो तो यस विल नाउ टेक फॉरवर्ड। या ठीक है, जस्ट टू गिव अ लिटिल बिट ऑफ क्लोजिंग, यहाँ पे मैं एक इम्पॉर्टेंट पार्ट शेयर करना चाहता हूँ व्हेन इट कम्स टू सेल्स, बिजनेस एंड ऑल। सो आई एम 31 years old, अगर मैंने आपको मेंशन नहीं किया तो, एंड बीइंग एन इंजीनियर आई लर्न द टेक्निकल पार्ट। और मेरे जितने भी इंजीनियर फ्रेंड्स थे, दे ऑल गॉट इनटू अ जॉब। सम ऑफ देम आर इनटू डेवलपमेंट, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, some of them are into development, some of them are into basically how the things work and everything. But उनमें से कोई sell नहीं कर पाता है. They always need to go to a person who can sell them. Okay, for example, lot of you people are good in your work. I think इस मुद्दे पे बात भी हुई है, थोड़े words exchange हुए हैं. You are good with your work, but you are not good in presenting your work. आपके अंदर जो इमोशंस है आप वो अपने काम में प्रेजेंट कर पा रहे हो, बट वो आप अपने ऑडियंस को या अपने टारगेट को नहीं प्रेजेंट कर पा रहे हो, जो स्पेशलिटी है अंजलि मैडम की। एंड जस्ट बिकॉज मिस्टर नरेंद्र जी यहाँ पे है तो मैं उनका तारीफ नहीं करूँगा, नहीं आपको बोलने को नहीं लगाने वाला हूँ। नरेंद्र जी ज़्यादा बोलना प्रेफर नहीं करते, ही इज गुड इन डायरेक्शंस, सो जस्ट हिज एक्सपर्टीज, हिज नॉलेज इज इनटू थिएटर, मूवी, एक्टिंग एंड ऑल, और उस चीज़ का बहुत अच्छे से वो यूज़ करते हैं
इन द एंटायर फॉर्मेट, इन द एंटायर सिस्टम। अब आगे जो मैं आपके साथ एक्टिविटी करने जा रहा हूँ इसे हम एक्चुअली स्पीड नेटवर्किंग बोलते हैं। आप में से कौन कौन अपने विजिटिंग कार्ड्स लाया, प्लीज हाथ ऊपर करिए। यस सॉरी, अच्छा सभी विजिटिंग कार्ड्स जो लाए हैं, सो दिस इज व्हाट वी विल डू। आप अपने बैग्स, अपनी जो चीजें हैं उनको चेयर पे रख दीजिए, ओके? चेयर्स को अंदर पुश कर दीजिएगा, सिर्फ अपने आर्टवर्क को, जो अपने पोर्टफोलियो को सामने रख दीजिएगा और उसके बाजू में अपने विजिटिंग कार्ड्स रख दीजिएगा, ओके? यू कैन गो ग्रैब समथिंग टू ईट, ठीक है? प्लीज मेक श्योर दैट यू कैरी सम टिश्यूज विथ यू। हैव अ लुक एट द आर्ट, इफ यू लाइक द आर्ट, ग्रैब द विजिटिंग कार्ड, ओके? स्पेंड अ मिनट और टू एंड देन मूव ऑन, एक सर्कुलर फॉर्मेट में। एवरीबडी अंडरस्टूड दिस, राइट? सो प्लीज, नहीं है कोई बात नहीं, अगर किसी को आपका आर्टवर्क पसंद आया रहेगा तो ऑटोमेटिकली आपके पास आ जाएंगे। ये मैं आपको 10-15 मिनट देता हूँ ताकि आप एक दूसरे से कनेक्ट कर पाइए, सोशलाइज कर पाइए। कीप अ गुड बंच ऑफ विजिटिंग कार्ड्स, एटलीस्ट 20-30 रख दीजिए, क्योंकि वी हैव लाइक 30+ पीपल। अपना बाकी सारा सामान चेयर्स पर रख दीजिए और चेयर्स को अंदर धकेल दीजिए, एंड प्लीज ग्रैब समथिंग टू ईट एज वेल। ये काइंड ऑफ एक आज प्रिंट एग्जीबिशन, प्रिंट एग्जीबिशन, यस।